Hello students, good morning all. Good morning, sir. Good morning guys. So guys, yeah, first one we should discuss from which one guys, HCV or which Yes, one? sir, HCV. Okay. HCV, we should start with KTG. Yes, sir, KTG 1 to 30. KTG का okay. Chaitanya. So I had a doubt. So whatever sums are there on Young's modulus, did we have to leave them? Young's modulus ka no, we can we have discussed that no theory also theory part. Aditya, you didn't do that one. So once, and I'm just checking my notes, sir. So did we do it last class only? No. It I guess sir might have done in thermal expansion. So I don't remember Sir, doing it with. anyone didn't do it at least. So we didn't do it with the ARP, sir, before the offline started. Oh, okay. ठीक है. तो जो है it's a ठीक है. I will guess. So but then I just saw the formula from online only, and then I solved the sums using that. Oh, okay. So like quickly, I will like if you want, I can we can discuss that one. So Okay, sir. okay. Yes, sir. So okay, one minute we can discuss that one. Okay, guys. तो इसमें जो है first they start with the Hooke's law. Which says stress. We will define this one. Stress is proportional to strain, or stress by elasticity. Stress by strain is a constant, and this proportionality constant is called as modulus of. So okay, this proportionality constant is called as modulus of elasticity. Guys, इसमें जो है we have three modulus of elasticity which we'll study in the chapter. The first one is Young's modulus of elasticity. Second one is bulk modulus. And third one is shear modulus. So guys, ये modulus of elasticity जो है depend basically it's a experimental chapter, material testing का है. It's a material testing, experimental chapter. So Young's modulus में जो है the body is subjected to says tensile forces. Like body is subjected to tensile or compressive forces. Bulk modulus में it is subjected to pressure from all the sides. Experiment, this experiment जो है, और shear में जो है, here we see जो है tangential forces between layers. So I guess इसके questions हैं. So how this ये वाला जो है, let's see how this one works. 1 minute. So Young's modulus के लिए so guys, Young's modulus के लिए suppose you have this is elastic material which is fixed at one end,
or force is applied. So when you apply this force, so guys, क्या होगा इसमें? When you apply this force, it will go elongation. So Euler force, elongation. So say this elongation is x. So यहाँ पर जो है longitudinal stress along the length stress, longitudinal stress. Guys, ये वाला तो external force है. अब क्या होगा? जैसे आपने खींचा, just like rubber या spring जैसा जो है, तो उसमें खींचा तो क्या होगा? Material के अंदर क्या होगा? एक restoring force develop होगा. So this elastic force. So this restoring force, which is getting developed inside the material. So longitudinal stress is force by area. कौन सा force? अब जो है actually देखो equilibrium में धीरे-धीरे हम we are pulling it. So ये वाला force और ये वाला force equilibrium में क्या होंगे? Equal ही होंगे. Magnitude. Voice is echoing. Oh, voice clear नहीं आ रहा. Sir, it's echoing a bit when you speak. Oh. One minute guys. हाँ, जैसे guys, is this अभी is this clear now? So it's still echoing a bit. Okay. So you should One minute. try using earphones or headphones. उससे थोड़ा ज़्यादा clear हो सकता है. 1 minute. Otherwise, जो है, I will and sign on and then rejoin again 1 minute. Guys, अभी ठीक आ रहा है voice? अभी how is it? Yeah, it's better so now. Okay, हाँ. So guys, जैसे जो है, से इसमें basically Young's modulus में क्या है? The body is subjected to tensile or tension or compression. So ठीक है, इसमें you apply action. जैसे ये body का ये natural length, आपने क्या किया? You applied external force और ये इसको खींच के ले गए और यहाँ पे पकड़े हुए हो. जैसे रबर था, रबर को आपने खींच के यहाँ तक ले गए and you are holding it. So this is the external force and this is the elastic force which is inside, which has developed inside the material. So stress is defined as this elastic force, which is elastic restoring force. So if elastic restoring force which is developed inside the metal, दोनों equilibrium में दोनों equal ही होंगे guys, हाँ? This one and this one, divided by this area of cross section. This is stress, strain. So longitudinal strain, longitudinal strain. Longitudinal strain क्या हो जाएगा guys? जैसे जो है strain, stress जो है ठीक है guys, force by area जैसा आएगा. Strain का actual देखेंगे definition जो है, strain is change in dimension divided by natural dimension या original natural dimension. So guys, यहाँ पर जो change हो रहा है basically prominent change length का हो रहा है. तो change in dimension length जो है, मान लो L था, now see this has increased by X. So this is a change in length. तो guys क्या हो जाएगा? Change in length divided by the natural length. Natural length इस temperature पे जो है, अभी जो present temperature चल रहा है उसमें T है, L है sorry. So natural length is L and जो है as per the Hooke's law, stress by strain is constant. Stress basically guys ये वाला था ना, stress is equal to
See, stress is equal to some constant time strain. I mean this one, ठीक है, stress is equal to some constant time strain. फिर इससे जो है we got this stress by strain is constant. Why is it like this? तो अगेन फिर वैसे ही आ रहा है गाइस. No, sir, it's clear only. एक मिनट, क्यों आ रहा है? It's clear, but sir, I'm asking that Hooke's law was like the हुक्स लॉ में नेहल इट वाज मिक्सिंग अप क्या वहां पर? no, I'm asking Hooke's law, so where did it come from? हुक्स लॉ, वेयर डिड इट कम फ्रॉम? हुक्स लॉ का ऐसा ये जो है बेसिकली हम एक्सपेरिमेंटल यही है, जैसे मतलब अपन बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ही है. स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ऐसा. Oh, So stress is proportional to strain. Stress is equal to some constant times strain, and that constant proportionality is called, this constant of proportionality is the modulus of velocity. So पहला जो है गाइस कौन सा था, ये वाला? तो longitudinal stress by longitudinal strain is a constant. So longitudinal stress दोनों को भी डिवाइड एंड इज इक्वल टू क्या जा रहा है यहाँ पर, कांस्टेंट टाइम्स लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. और यहाँ पे जो कांस्टेंट है गाइस दैट इज यंग्स मॉडुलस y. सो इसको लिख लिया हमने, इलास्टिक फोर्स जो रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया y, स्ट्रेन इज x by l. सो गाइस ये कैसा आ गया यहाँ पर, F is equal to y a by l into x. So F is equal to some constant times x. वैसा सिचुएशन आ गया. करेक्ट गाइस, F is equal to y a by l into x. So ये तो हो गया यंग्स मॉडुलस. तो गाइस क्या क्या टर्म्स है यहाँ पर? A is the area of cross section, length. So guys, length is the natural length at this temperature. हाँ. अब इसमें जो है लाइक थर्मल एक्सपेंशन के साथ क्वेश्चंस थे इसमें. 1 मिनट गाइस, ये वाला so can I move on to the next slide? Yes, sir. सर इसमें लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो रॉड में तो बहुत कम रहेगा ना. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यस, आई मीन रहेगा. चेंजेस उसमें जो आई मीन एरिया क्रॉस सेक्शन तो अपन ने जो मटेरियल लिया है टेस्टिंग के लिए उस पर डिपेंड करता है, राइट अक्षर? तो लाइक अगर हम लोग रॉड ले रहे हैं तो रॉड में हम लोग वैसे भी लेंथ वाइज ही काउंट करते हैं ना, वॉल्यूम वाइज नहीं करते. यस, रॉड अगर ले रहे हो और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, रॉड को अगर मान लो खींच रहे हो, यू आर सब्जेक्टिंग रॉड टू टेंसाइल और कंप्रेशन. हाँ, तो उसमें जो है यस, तो उसमें एरिया जो भी रहेगा उस एरिया तो गिवन रहेगा ना उसका. आई मीन जो चेंजेस आएंगे उसमें प्रोमिनेंट चेंजेस लेंथ वाले डायमेंशन में. हाँ, तो लेकिन हम लोग को मतलब एरिया कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग रॉड में? और इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे? ये तो एक्सपेरिमेंट में जैसे जो है हमारे पास वायर का वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज होता है, तो उससे उसको डायमीटर मेजर करते हैं पाई d square by 4. Or I think he means how will we calculate it while solving the sum? They will give it now in the sum. Oh, All they will the give it. sums have given it. Yes, they will give it, Gopal. Yes. Okay. अब जो है guys, this Young's modulus, it's a property, elastic property of material, है ना? तो जो जैसे एक density होता है, density of a material, है ना? तो inertial property, तो ये वाला जो है elastic property of material, और ये given रहता है, it's a constant. जैसे कॉपर का एक वैल्यू रहेगा, स्टील का यंग्स मॉडुलस का एक वैल्यू रहेगा, एंड सो ऑन. ना, वैसा ये जो गिवन रहेगा. ठीक है गाइस, तो यंग्स मॉडुलस. अब इसमें जैसे एक्चुअली हमारा एम क्या था, इसके साथ मिक्स्ड क्वेश्चन जो है थर्मल एक्सपेंशन के वो वाला करना गाइस, है ना? सो जैसे जो है इसके लिए लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. जैसे सपोज यू हैव ये suppose you have two fixed walls. ये दो, say these are two walls
और इनके बीच में let's say we have a elastic rod which just fits in. तो ये रॉड जो है ऐसा जस्ट यहाँ पे फिट है. अब भाई रॉड का सभी डेटा गिवन है, से लेंथ एल गिवन है. हाँ अभी सपोज हाँ टेम्परेचर, से टेम्परेचर इज टी नॉट. इस टी नॉट टेम्परेचर पे लेंथ इज एल, एरिया गिवन है, इसका यंग्स मॉडुलस, इसका अल्फा इज आल्सो गिवन. ठीक है. अब जो है इट जस्ट फिट्स इन. अब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, से नाउ द टेम्परेचर इज टी नॉट प्लस डेल्टा टी. तो टी नॉट प्लस डेल्टा टी करते ही जो है क्या हो जाएगा इसमें, ये वाला जो है एक्सपैंड होना चाहेगा. नाउ बट दिस इज restricted between two fixed walls, तो एक्सपैंड नहीं हो पाएगा. सो नाउ एक्सपैंड तो हो नहीं पाएगा, तो उस केस में क्या होगा, फोर्स जो आ जाएगा, एंड वी वांट टू फाइंड द फोर्स. एक्सपैंड होना चाहता है तो So एक्सपैंड एक हो नहीं रहा. conceptual doubt था. यस हाँ हाँ. Sir, with the formula that force we calculate, sir, will it be the total force, like these two forces you have drawn, will the sum of these two forces be equal to that force, or each of these forces is equal to that force? ओ ईच ऑफ ना, एक एक एंड का जो है एक एक एंड का रहेगा. लाइक यू विल ड्रॉ किसी भी एक साइड का हम देखेंगे. Like see 1 minute, let me explain you this पूरा whole setup, how will we approach this one. हाँ तो इसको अप्रोच कैसे करेंगे, then we'll have some clarity. तो guys टेम्परेचर क्या हो गया भाई, टी नॉट टेम्परेचर पे क्या था, it just fits in. Now we have increased the temperature by T naught plus delta T. तो how will you simulate this situation? तो what you will do is, भाई एक साइड का वॉल ऐसे रहने दो, and temperature T naught का, temperature is T naught. See this temperature is T naught. And अभी क्या करो guys, T naught और फिर टेम्परेचर बढ़ा दो T naught plus delta T. तो टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया T naught plus delta T. सो उससे क्या होगा, रॉड का इंक्रीमेंट होगा. दिस ये डायग्राम इज एग्जैगरेटेड, इतना हाई परसेंटेज इंक्रीमेंट नहीं होता है. सो दिस इज द इंक्रीमेंट. So this increment you can calculate using the concept of thermal expansion. You will say delta L, which is the increase in length, is L alpha delta T. So अभी क्या चल रहा है, टेम्परेचर T naught plus delta T. T naught plus delta T में ये रॉड फ्री एक्सपैंड कर गया. So ये उसका इंक्रीज हो गया, और उसका इस समय नेचुरल लेंथ पूछा जाए तो नेचुरल लेंथ विल बी L naught plus delta L या L plus delta L, whatever. L plus delta L is the natural length. फिर नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज, ये वॉल को ऐसे ही रहने दो. हाँ टेम्परेचर चल रहा है T naught plus delta T. So you're gonna push from the side. यहाँ से एक साइड से you will start pushing it. एक साइड से, हाँ गाइस, तो किसी एक से, ये वाले साइड से. So you will start pushing it. और पुश करके जो है टेम्परेचर इज T naught plus delta T. पुश करके you will bring it here. Then you will construct a wall. ये पुश किया और temperature is T naught plus delta T only. और यहाँ पे you will construct a wall, and then you will live it. So guys ये वाला force हमें निकालना है, right? Ariman, is this clear? Yes, understood. हाँ so जो है, so एक साइड से जैसे उसको फ्री छोड़ दोगे तो फ्री में जो ये एक्सपैंड कर गया, फिर एक साइड फिर पुश, क्योंकि you want to end up in this situation. So what you will do, you will push it, you will bring it to this position, and then you will construct a wall, and then you will leave it. तो अब जो है ये वाला निकालना है. So guys कैसे कैलकुलेट करेंगे ये वाला, यहाँ से तो ये तो वाला ये थर्मल एक्सपेंशन कंसेप्ट. अभी which concept, इलास्टिक का कंसेप्ट आएगा, because temperature is constant and you are pushing it, compressing it. So इलास्टिक के कंसेप्ट में फोर्स क्या होता है guys, फोर्स is what, y area by क्या नेचुरल लेंथ, y area by natural length into Into what? deformity. Into deformation, extension or compression, whatever. Okay, so guys expression क्या आ जाएगा, y f is equal to y. अब एरिया में उतना चेंजेस नहीं मान रहे हैं guys, हाँ लेंथ का ही जो उतना चेंजेस मान रहे हैं. और एक्सटेंशन या कंप्रेशन कितना हुआ as per this data, from T naught to T अपन को T naught plus delta T में we are compressing it from, this is a natural length, ये पूरा is a natural length, and you are compressing it. So what is the compression or extension?
Guys, Oh, this is Delta your L. or delta T. yes, L alpha delta T. So L alpha delta T divided by natural length of the rod at this temperature. What is the L. natural length of the rod at this temperature? So L, no? L, sir. No, natural length to L So L L to plus T naught delta plus L. delta. L plus delta L. L plus delta L is the natural length. So L plus delta L. So what is the final answer? Final answer will be क्या हो जाएगा? Y A L alpha delta T divided by L times 1 plus alpha delta T. और ये वाला हटा लो यार इसका. So final answer is Y alpha A YA alpha delta T divided by 1 plus alpha delta T. And guys, वैसे भी alpha delta T is जो है that is of the order of 10 to power minus 4 या minus 5 के order का होगा guys? Because alpha is the order of 10 to power minus 6 या minus 5 और into delta T का product करेंगे तो still it is small. Correct guys वाला? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So इस type का question one we can have, and also we can have this kind of question जैसे say suppose say the you have two walls again, दो walls हैं and say or this is the wire, say the temperature is T naught. Now you have decreased the temperature of the room. Temperature now becomes say T naught minus delta T. So guys, इसमें force by the walls calculate करना है. How will you calculate? क्या approach होगा इसके लिए? So वापस keep one wall fixed, then allow it to contract normally, and once it contracts normally, that will be its natural end at that temperature. So then you go and then you like hold the free end and then you pull it outwards and then you fix it onto a wall. Exactly correct. So what is the final answer? YA, and you have to increase. It will contract by L alpha delta T. Yes, sir. और फिर so this is the extension you need to cos Y L alpha delta T divided by natural length L at this minus. So L into 1 minus L alpha. into 1 minus alpha delta T. Guys, is this correct, Yola? Now you can also have you can make a question like this also guys. जैसे मान लो say we have एक rod ऐसा है and say एक ऐसा and say now we keep another rod ये ऐसा and now they are fixed between two walls. So guys ये ऐसा है and say data is given for all the objects, say y a, so let us keep alpha different, say इसका alpha 1 and इसका y1 and say इसका जो है second वाले का guys चलो इसका रख लेते हैं L say L same रख लेते हैं L a and alpha 2 y2 and say now this is temperature T naught or this is the junction guys, हाँ ये वाला junction है and say you increase the temperature by T naught plus delta T. So T naught plus delta T कर दो और फिर जो है say so now you want to find a shift in the junction. Find the shift in junction when temperature increases by delta T. Guys, ये वाला कैसे करेंगे फिर? How will you do this one? So अब भाई temperature increase कर रहे हो दोनों लड़ेंगे. So they will be fighting. हाँ, yes Gopal, how will you do this one? So एक second, so I'm thinking. Okay. सर जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसकी साइड शिफ्ट होगा. अल्फा और वाई दोनों एक हाँ एक assume कर लो किसी के साइड चला गया किसी की चल गई. So can you like assume like one thing to be like a wall and then like take relative alpha or something? रिलेटिव का फिर आई विल नॉट फिर जस्टिफाई कैसे कर रिलेटिव का तो नहीं Oh, I yes, do that not doesn't make justify. sense. Yes, sir.
और या फिर एक को छोड़ देते हैं ना, दोनों को पहले फ्री एक्सपेंशन करा के छोड़ देते हैं यार। Okay, sir. चलो फ्री एक्सपेंशन करा के छोड़ देते हैं, तो इसको बढ़ा दो इधर। तो ये व्हाइट वाले को इतना एग्जैगरेटेडली वी आर ड्राइंग, सो ये वाला व्हाइट वाला वी आर ड्राइंग दिस वे एग्जैगरेटली लेंथी यहाँ पर। ओके सो ये इतना यहाँ चला गया, एंड से ये वाला यहाँ से यहाँ तक गया। यस नेहल, व्हाट विल बी दिस वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू? Delta. Delta L, which is L alpha 1, delta L1, let us write this as delta L1, या L जो भी है ठीक है, L alpha 1 delta T. Now same thing will let's do for the yellow one, free expansion guys, पहले अपन सोच रहे हैं ही नहीं, और उसका करा दो यार, अब फ्री एक्सपेंशन करा के छोड़ दो, दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है, फ्रीली एक्सपैंड हो गए इस पोजीशन से, एंड दिस विल बी हाउ मच, L alpha 2 delta T. अब यार दोनों लड़ रहे थे, किसी एक की चली होगी, अपन को पता ही नहीं किसकी चली है। सो लेट अस एज्यूम समथिंग, कुछ नहीं होगा तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा गाइस, है ना, y, क्योंकि y भी एक फैक्टर है जो डिसाइडर है। सो गाइस ये किधर लेना चाहते हो, राइट साइड या लेफ्ट साइड, जंक्शन का शिफ्ट? Right side. ओके राइट साइड, सो द से यहाँ पर कहीं आ गया जंक्शन, सो से द जंक्शन शिफ्ट्स बाय x, सो ये वाला हो गया ऐसा। अब यहाँ पे भाई दोनों जो है इक्विलिब्रियम में, दोनों यहाँ बैठे हुए हैं गाइस, इक्विलिब्रियम है, this junction is in equilibrium, so what will Newton's law say? Forces are equal. That force is 0 on that part. Okay, so ये वाला जो है इधर का फोर्स, व्हाइट वाले का फोर्स और ये येलो वाले का फोर्स आर इक्वल। So, हाँ so like, do you calculate the amount of force needed for this X cut deformation for like rod 1, and then use that same force in terms of X for rod 2 to get a relation? करेक्ट, इस पोजीशन पे ना, इस पोजीशन पे जो है दे आर इन इक्विलिब्रियम, सो आई विल टेक एट दिस पोजीशन गोपाल। हाँ, सो इस पोजीशन पर जो है द फोर्सेस आर इक्वल एंड द फोर्सेस दे विल बी डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द इलास्टिसिटी कांसेप्ट, यंग्स मॉडुलस कांसेप्ट ना। Yes, sir. चलो ठीक है, अब F1 F2 की वैल्यूज बताओ, यू आर सेइंग इक्वल, सो F1 इज इक्वल टू F2। ओके यस नेहल, जो है येलो वाले का क्या आएगा, यंग्स मॉडुलस y2 एरिया, area L alpha 2 delta T minus X. यस गाइस यहाँ पे तो यस वी हैव टू बी केयरफुल। हाँ यस गोपाल, हाउ डिड यू से दिस वन? So like, so the new, एक second, sir, एक second. नहीं, sorry, it will be plus X. So L alpha 2 delta T plus X. जैसे गाइस ओके हाँ हाँ, यहाँ से यहाँ तक आ गया राइट। Yes, sir. Now okay, now what you have done is now you have उसको पुश करके आपने जबरदस्ती यहाँ पे लाके बैठा दिया। So now at this temperature T0 plus delta T, what you have done is पूरा यहाँ से यहाँ तक जबरदस्ती पुश करके यहाँ बैठा दिया। So this much you have caused the compression. Okay, you have caused a compression of L alpha 2 delta T plus 6 divided by L times 1 plus alpha 2 delta T. हाँ यस नेहल, व्हाइट वाले का क्या आएगा? Sir, For the white white In that plus X thing I again. is equals to हाँ alpha 1 delta T minus X. L alpha 1 delta T minus X divided by L L1 times 1 plus alpha 1 delta T. ठीक है गाइस, अब इसको you can solve it. Sir, I have a doubt. हाँ गाइस, इसको अपन ये अल्फा 1 डेल्टा टी और अल्फा 2 डेल्टा टी को नेग्लेक्ट कर लेंगे, सो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है, लाइक y1 a और ये L1 अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस x, और नीचे जो है ना ये वाला टर्म को नेग्लेक्ट कर रहे हैं भाई, ये वाला, सो नीचे L इज इक्वल टू, मतलब बेसिकली ये अल्फा डेल्टा टी को नेग्लेक्ट करके थोड़ा सा इजी कर रहे हैं गाइस। हाँ, सो इससे यू माइट ट्राई दिस वन, हाँ ये वाला,
Yes, Ariman, you were saying something. हाँ, so Someone- यही doubt था sir in denominator wise that 1 plus alpha delta t, that it should just be L, right? Guys, why is it is 1 plus alpha delta D? Because after the increase in temperature, Because the yes, natural line which we take now, it will be after So the increase. isn't the natural length that we're supposed to take at the Oh, initial temperature? natural length is not any fixed. Ariman, natural length is temperature dependent. अभी टेम्परेचर चल रहा है T नॉट प्लस डेल्टा टी. भाई T नॉट प्लस डेल्टा टी में येलो वाले का ये हो गया. T नॉट प्लस डेल्टा टी में ये येलो वाले का नेचुरल लेंथ पूरा है ये वाला. So White but वाले are we का supposed to take the natural length at the initial temperature? no, but you are doing this equilibrium at this temperature. So you need the elasticity concept, you need the forces, you need the everything at this temperature ना. Elasticity में तो जो है natural length at जिस temperature पे कर रहे हो वो वाला temperature का data चाहिए होगा. अच्छा, okay, so I got it, understood. हाँ. अब जो है guys इसमें जो है okay, so I will ask you one more. ये तो हो गया. So let us do one question from here. One minute. HCV का. ये क्या हो गया? Okay guys, तो ये वाला third 30. Yes students, please try this one. Oh guys, ये वाला visible है क्या PDF? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I have a doubt. Yes, हाँ. So will the final shape be like how it was in a bimetallic strip? Like the shape will be similar? Now yes, you guys please tell guys. यहाँ पर bimetallic वाला shape So I know आएगा. there are 3 these things in that, but so will the shape be the same? Yes, guys, please tell what is your opinion. I don't think it will, sir, because the So both ऊपर the का steels steel and the will नीचे का steel will they like cancel? away back. Yes, so yes, steel वाला जो नीचे भी है ऊपर भी है, so it will not. It will keep the orientation as straight one. Okay, so got it. Sir, and this L naught length that they are saying, sir, is that the horizontal length or is that the breadth of the system? Oh no, horizontal वाला. I mean ये वाला ये dimension, this length, this one.
So you want to find the final length of the system. Temperature increase is delta T. Steel, aluminum, steel. So can you show the question again? One minute. Thank you, sir. Guys, इसमें expansion. हाँ सर 8 seconds और solve हो रहे हैं अभी. Oh, okay. Just I was asking, किसका ज्यादा होता है expansion alpha? Steel का, aluminum का किसका ज्यादा रहता है? तो स्टील का होता है क्या? Steel का, okay. और this one I will give as a homework, guys. ये वाला हाँ थोड़ा doubts guys काफी सारे हैं क्या? I mean we'll have time. So around 2-3 in like ATJ. Oh, that's it. Okay, ठीक है. Akshay, how many doubts you have? Nehal, how many doubts? So from this chapter, I have one. From Only KTJ. one. KTG only one. Okay. Yes. And booklet also you have completed, no? So I have not adopted these young models. Okay, only the young spots. I will also draw a diagram for myself, guys. So can you give a hint as to what the final equilibrium position will look like? Okay, 1 minute. So this one is the outer one is steel. Then you have aluminum here. Steel, aluminum, and then we have steel. और यहाँ पे there is a rigid plate here. Now so अब temperature increase कर रहे हैं guys यहाँ पर. So ठीक है, इसमें जो है दूसरा end छोड़ देते हैं, free expansion करा लेते हैं. So दूसरा end छोड़ दिया, free expansion, ठीक है. गोपाल, steel has more. तो you are saying steel has more, तो चलो उसको ज्यादा expansion करा देते हैं, exaggerated काफी ज्यादा. And then ठीक है, steel का ज्यादा हो गया. And then we have ये ऐसा. And then you have yellow वाले का भी expansion like this, ठीक है. Okay, so दोनों expand, yellow वाले का भी expand हमने करा दिया. अब guys finally equilibrium they have to reach.
सो जो है क्या होना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है यहाँ पर हाँ इक्विलिब्रियम में गाइस तीनों दे मस्ट बी ऑन वन साइड राइट, दे मस्ट बी टुगेदर. सो नाउ इक्विलिब्रियम गाइस ये बताओ कि यहाँ से लेफ्ट होगा या यहाँ से राइट होगा, किधर होगा? तो ऐसे इंट्यूशन से यहाँ से राइट होना Right, yeah, चाहिए, but in the yeah. equation then everything gets cut out, so you get a like a why can't have equilibrium all here at this position? Gopal, why cannot have all equilibrium here in this position, or it can. at this position? So it can, but then you'll have to verify it with your equation if the equation is holding true or not. Okay, so Gopal, agar ki मान लो to have equilibrium in this position, I have to compress all the three rods. Yes, sir. I have to compress all the three rods, and then I have to keep them, and then put a this whatever rigid plate here. So guys, तीनों का compression है तो तीनों पे force किधर आएगा? इस side आ जाएगा. So तीनों पे force इधर आएगा तो फिर Newton's law से जो है net force इस direction में, so it cannot stay in equilibrium. Yes, sir. So तीनों यहाँ पे तो नहीं हो सकता, यहाँ पे भी करने जाओगे तो all three have compression because इसको भी यहाँ तक लाना पड़ेगा, इसको भी compress करना पड़ेगा, इसको भी compress करना पड़ेगा. Correct? हाँ, यहाँ पर suppose if you want to have equilibrium in this region, यहाँ पे करोगे, so yes, तो ठीक है भाई, क्या करना पड़ेगा? इसको extend करोगे तो ये आप pull करेगा और इसको compress करोगे तो ये ढकेलेगा इस side. So it can have equilibrium at this situation. Guys, is this correct? Yes, yeah, sir. I had taken this condition only, but then I made a mistake while writing the constraints for that, like the amount it shift. Oh, okay. So I So- took both of their like deformation to be x and x, गलती से, instead of taking Oh, h. नहीं हाँ. And this region में भी नहीं हो सकता guys, correct? इस region में तो दोनों को extend, सबको extend कराना पड़ रहा है. चैतन्य, is this one clear ना? क्यों नहीं हो सकता? Chaitanya, please ask. Any doubts? Oh, Chaitanya is not there. Okay. Akshat, No, any sir. doubts? No doubts, na? Okay. Akshat, any doubts here? Nehal, any doubts? No, Please sir. ask Darshan. Okay, चलो तो guys, हमें ये clarity आ गया कि equilibrium जो है कहीं बीच में होगा यार, यहाँ पे कहीं. So let us draw that position now. So equilibrium position में क्या होने वाला है guys? यहाँ पर जो है let us, तो हमें जो है yellow steel वाला white वाला जो है we have to bring at this position. Steel वाले को यहाँ लाना पड़ेगा, and then नीचे वाले steel वाले को भी यहाँ लाना पड़ेगा, और येलो वाला एल्युमिनियम वाले को भी जो है यहाँ पे लाना पड़ेगा. Then you will have equilibrium at this position. चलो ठीक है. So guys, and then now you have to calculate this length here. ये वाला length calculate करना है. This is the final length of the arrangement. LF. Final length. So जो है, so let us mark. तो डेटा पहले मार्क कर लेते हैं guys. तो पहले जो है ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा लेंथ कितना होगा? So L0, so one second. So L0 alpha steel into theta. L0 alpha steel Delta into T. delta T. Okay, theta. I have given delta Ah, t. so The delta delta T is T theta in theta. this case. Okay, delta T is theta. अब जो है this one, ये वाला part. This one is L0 alpha aluminum theta. Okay guys, तो अब यहाँ पे आ गया. So forces करने. So guys, किसका ये जो है इस पोजीशन पर स्टील को आपने जबरदस्ती कंप्रेस कर दिया, तो स्टील तो इधर फोर्स लगाएगा. कंप्रेस किया है आपने जबरदस्ती उसको स्टील, और एल्युमिनियम बीच में जो एल्युमिनियम उसको एक्सटेंड किया है, so it will try to shrink back. It will try to shrink. ये एल्युमिनियम का हो जाएगा. And what will be the Newton's law expression on this rigid plate? ये जो साइड में जो वेल्डेड प्लेट है उसमें क्या है? न्यूटन्स लॉ का इक्वेशन क्या है? Net force is 0. Net force is 0. That implies net force is 0. That implies FA is equal to 2 times FS. Guys, left का force, right का force equate कर देते हैं. अब जो है now we have to write carefully.
FA and FS. So let us write first FA. Guys, FA की वैल्यू बताओ क्या आएगी? FA की वैल्यू YA एरिया अपॉन लेंथ टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा डी ना, उसको ना नीचे वाले को नेग्लेक्ट करते हैं, नीचे वाला करते हैं तो और थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ऊपर वाले को लिखते हैं, छोड़ो। हाँ, ऊपर वाला कितना आएगा गाइस? YA व्हाट इज द कंप्रेशन इन द ऊपर वाला पार्ट? नहीं, हम किसका लिख रहे हैं सर आप ऊपर? एल्यूमिनियम का लिख रहे हो? ओ वी आर राइटिंग फॉर एल्यूमिनियम, बीच वाला है, ओके। हाँ यस। सो चलो एक मिनट, इसको स्टील का कर देते हैं। चलो हाँ, स्टील का क्या करना है? स्टील का L बताओ। naught, स्टील so का, L, स्टील का, स्टील हाँ का, हाँ, स्टील का। so L naught into अल्फा 1 plus alpha s theta minus LF. L नो बाय 1 प्लस। so So पहले you take the total length minus LF will give you the compression. this is the compression, right? ये वाला। Yes. So to L naught into 1 plus alpha s theta close bracket and then minus LF, that will give the compression. Total length minus final length. Okay. L naught into 1 plus ये पूरा माइनस LF, right? हाँ, so L naught into 1 plus alpha s theta minus minus LF. LF. हाँ sir. Okay. ये आ गया आपका इसमें, okay guys. Then we have we have to write for steel, aluminium. हाँ guys. The aluminium में just it will be LF minus that. और ये वाला जो है एल्यूमिनियम के लिए A by L, एल्यूमिनियम के लिए LF minus that ना? Yes sir. LF minus L naught into 1 plus alpha aluminium into theta. क्योंकि एल्यूमिनियम का ये वाला है जो है गोपाल, दिस वन इज द फॉर द एल्यूमिनियम, यहाँ से यहाँ तक। हाँ yes so sir. yes, so इसमें से जो है हाँ, फाइनल में से ये वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला गेट। ओके, so you are saying LF minus L naught 1 plus Alpha aluminium sin theta. Oh, sin theta. guys, everybody please check, ये वाला करेक्ट ना? अब इसको इक्वेट कर देते हैं भाई। तो लेकिन नीचे वो भी तो करना पड़ेगा ना, वो इनिशियल लेंथ। दैट गेट्स नेग्लेक्टेड ना। वो वाला 1 प्लस, हाँ L लिखा 1 प्लस अल्फा डेल्टा 1 प्लस अल्फा एस थीटा, वो थोड़ा सा भयानक हो रहा है, उसको नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा ओके सर। So we have to neglect it in all questions? No, like you have to see the options. If the some options it contains that term, then that is more accurate. So we have to select that one. So, but in every sum I solved it, I used that only and I got the exact value. हाँ, लेकिन अगर मान लो you are given both the options, बिना नेग्लेक्ट वाला और नेग्लेक्ट वाला, जैसे है ना, तो उस केस में जैसे मान बिना लो नेग्लेक्ट वाला I'll take, right? हाँ हाँ हाँ, so that is more accurate. So यहाँ पर जो है, okay, so ये वाला, guys when we equate this, ये वाला goes out. यार ये आएगा क्या इसमें इक्वेट करने पे फिर फाइनल आंसर? गाइस ये वाला एवरीबॉडी ये सबका मैच हो रहा है ना? दिस इज राइट ना गाइस? दोनों का FA एंड FS, एवरीबॉडी अंडरस्टूड ना ये वाला? Yes sir. Okay, okay. So now FA is 2 times FS. FA is 2FS. FA is YA by L. YA by L times LF minus alpha A theta, sorry क्या हो गया, हाँ, alpha A theta YA A by L तो हट जाएगा, हाँ, YS L naught 1 plus alpha S theta minus LF A by L हटा रहे। So guys, इसमें will we get the answer वैसा वाला फॉर्म में?
1 plus alpha is theta minus 2 ys LF. ओ इसको एक साथ कर लेते हैं. We want to find LF. This we have to take other side only. Oh. 1 plus alpha theta no. Guys, ये वाला तो लेंदी जा रहा है इसमें L0. Plus guys, ऐसा कुछ आएगा क्या आंसर इसमें? गोपाल, do we have a chance? Like इसमें से So, matlab, if you solve this now, you'll get the answer. Unless they give a different answer for you, have to neglect that approximation. okay. चलो ठीक है, इसमें you guys can do that. और बहुत painful होगा इसका simplification बस. सर ये फॉर्म में मैंने चेक किया, आंसर ऐसा ही आ रहा है, मतलब Oh, after match simplifying है. ऐसा ही कुछ है. Okay guys, चलो फिर एक मिनट. So this was the Young's modulus plus thermal expansion का. Guys एक बार उसका bulk का testing देख लेते हैं. How do they do bulk modulus में? इसके भी हैं. So guys, bulk modulus में what they do is they have a इसमें जो है basically soil testing. Soil testing में what they do, they have to simulate this situation ऐसा है guys, एक sample और sample में ना चारों तरफ से ऐसा pressure आना चाहिए, increase in pressure. So how do? They take a water bath. ये पूरा water bath है. इसमें जो है एक membrane में लेके जाते हैं sample को, और ये sample को water bath के अंदर रखते हैं, और इस water का pressure जो है increase करते हैं. तो वाटर का जैसे प्रेशर इंक्रीज करोगे तो दिस सैंपल विल बी सब्जेक्टेड टू प्रेशर फ्रॉम ऑल द साइड. दिस इज एक्सपेरिमेंटल, ये तो इंजीनियरिंग लैब्स में होगा. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. आपको तो डेटा गिवन होगा कि भाई तो बल्क मॉडुलस कैसे डिफाइन हो रहा है. तो बल्क मॉडुलस इज एक्सेस प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तो गाइस यहाँ पर ऐसा ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर डिफाइंड है, एक्सेस प्रेशर डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. सो बल्क मॉडुलस. अब जो एक्सेस प्रेशर, गाइस ऑलरेडी प्रेशर तो था ही. अभी जैसे हम एटमॉस्फेयर में तो ऑलरेडी 10 to power 5 का देयर इज प्रेशर, लेकिन हमें एक्सेस प्रेशर लिखना है. तो एक्सेस प्रेशर जो भी आएगा जो है बल्क मॉडुलस एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. अभी लॉन्गिनल स्ट्रेन क्या था? चेंज इन लेंथ बाय नेचुरल लेंथ. तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी क्या हो जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम बाय उसका नेचुरल वॉल्यूम डेल्टा वी बाय वी. सो गाइस प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये वाला इसका वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा. तो इसका वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर, ये डेल्टा वी पॉजिटिव होगा तो नीचे वाला नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पे दे पुट अ माइनस साइन. So प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम जो इंक्रीज करता है, तो इसको वी कैन राइट दिस वे आल्सो, dp और ये dv by v. So bulk modulus is what? Minus v dp by dv. Bulk modulus minus v dp by dv. This is how ये एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो ठीक है, bulk modulus is minus v dp by dv. अब यार इसमें जो है अप्रोक्सीमेशन वगैरह यूज कर सकते हो. जैसे भाई वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या था? 4/3 पाई r क्यूब. गाइस एरर का कंसेप्ट करके यार dv by v कितना आ जाएगा? ये तो कांस्टेंट है, इसको हटाओ. 3 क्या जाता है यार? dr by r. दिस यू कैन डू. तो इस टाइप के कंसेप्ट्स में जो है सम्स यू कैन डू. इसमें स्टूडेंट्स ये वाला भी जो है, जैसे हाँ, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस.
Wait, so can you go on the last page for a second? Okay. So जो आपने dv by v, so shouldn't it be 3r square into dr by dv? 3r square. Something is r cube का मतलब वो डेरिवेटिव. नो उसको तो ऐसे करते थे अपन आर्यमन, जो है इसको लॉग लिया, लॉग कर देंगे, है ना, ये we used to do that way. Remember v जो है 4/3 pi r cube, फिर लॉग ले लेते हैं ln v, तो ln of 4/3 pi, है ना, और फिर क्या जाएगा 3 ln r, फिर उसको this we can write as dv by v, और ये वाला 3 dr by r. अच्छा, okay, so got it. और if you want to do by differentiation also, dv by dr करोगे तो 3r square आएगा, फिर v से डिवाइड करोगे यार, तो v से डिवाइड करोगे तो r cube वाला टर्म नीचे है, तो 4/3 pi r cube. अच्छा, नेग्लेक्ट हो जाएगा सर फिर वो. No, like this way. अच्छा, okay, r square upon r cube हो जाएगा. हाँ 1 by r, got it sir. हाँ, so वैसा भी you can do. Okay, so इसमें तो ठीक है guys, ये वाला bulk modulus का जो है this type. अब isothermal bulk modulus of gas. So guys, isothermal bulk modulus of gas, isothermal process के लिए आपने पढ़ा है यार, क्या था, PV is constant. भाई bulk modulus निकालना है, तो bulk modulus निकालना है, तो you must end up in this situation. क्या था, dP और dV by V. तो गाइस ये निकालना है, जल्दी से निकालो भाई ये वाली वैल्यू. गाइस आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस में ये वाली वैल्यू निकाल के बताओ. आइसोथर्मल के लिए we have PV is constant और बल्क मॉडुलस. हाँ सर, 1 second. So minus nRT by V आता है. इसमें माइनस you are getting nRT by V. 1 minute, I will also do this one. So that comes out to be pressure, minus pressure. माइनस प्रेशर, लेकिन माइनस साइन ऑलरेडी है ना. हाँ तो pressure प्रेशर आ जाएगा. ओके, so you can do this way, or P dV plus V dP is 0, वैसे वाला. So product rule P dV plus V dP is 0, और फिर आप कर लो यार, यहाँ से क्या जाएगा, P dV is equal to minus V dP, और फिर हमें क्या निकालना था, हमें तो निकालना था माइनस V dP by dV निकालना था. ठीक है भाई, और इस पूरे को बल्क मॉडुलस, तो बल्क मॉडुलस जो है प्रेशर ऑफ आइसोथर्मल के लिए. ओके गाइस, फिर इसमें जो है ठीक है ना, आई कैन आस्क यू फॉर एक डिफरेंट प्रोसेस. गाइस लेट मी डिफाइन दिस प्रोसेस. एक और जैसे आइसोथर्मल है, एक और एक प्रोसेस होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, एंड से एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आई एम गिविंग यू दिस रिलेशन गाइस. हाँ, इसमें ना लेट्स से PV टू पावर गामा इज कांस्टेंट, गामा इज सम कांस्टेंट. हाँ, सो ठीक है, आप इस प्रोसेस का जो है बल्क मॉडुलस निकाल के बताओ. इस प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस बताना है, and bulk modulus is, this is defined V dP by dV. So there is a different process which we have given now. PV to power gamma is constant. एक second sir. So is it gamma into P? Gamma into P, correct. Okay guys, this one. So इसको जो है इसको how did you do this one? Like, so first I took volume to the like right hand side, so that becomes C into V to the power minus gamma. Okay, हाँ. So now I did dP by dV normal वाला.
dp by dv is equal to क्या आ minus जाएगा? gamma into v to the power minus gamma minus 1. Then you divide Now it. I क्या? substituted c again as pv to the power gamma. Okay, okay. c की जगह pv to power gamma. Yes, sir. pv to power gamma. So that v to the power gamma and v to the power minus gamma gets cut. So you get minus gamma into p upon v, and then you multiply v. So then that goes with that. Oh, okay, okay. So इससे जो है हाँ dp by dv और ये माइनस गैमा p और ये जो आ जाएगा नीचे अभी आ जाएगा. Okay, so minus v dp by dv is gamma p. So bulk modulus. Okay. So ठीक है guys. तो इसमें basically what you have done is the ratio of bulk modulus of adiabatic और isothermal का निकाला. This you got as gamma p. This is p. So gamma आ रहा है. Okay. चलो ठीक है. तो ये वाला जो है and guys कहीं पे भी दूसरा तो कहीं मान लो compressibility कहीं if they ask you compressibility is defined as 1 by bulk modulus. Suppose कहीं पे booklet में या कहीं question you encounter compressibility, this will do in that one also, but it is defined as 1 by bulk modulus. चलो ठीक है. तो ये compressibility is 1 by bulk modulus. तो ठीक है. Now with this you can solve these questions of elasticity. चलो guys अब बताओ next कौन सा discuss करना है? So can you do KTG? KTG. Okay. So we'll do KTG. KTG में yes one. Yes, which one? The seventh question. Seventh one. ये क्या हो गया? Seventh one. Seventh one. A gas cylinder has walls that can bear a maximum pressure of this much. It contains a gas at cylinder is heated. Calculate the temperature at which the cylinder will break. So my doubt in this, why didn't they consider atmospheric pressure in this? Like one time I considered it, one time I didn't consider it. When I didn't consider it, I got the answer. Okay. No, they generally we don't have to use atmospheric pressure. But isn't it a significant value, like 10 की power 5 Pascal? But you are assuming you're keeping it in a vacuum. Either that doesn't, you aren't supposed to take atmospheric pressure. और But या फिर they ऐसा don't भी तो say we're keeping it in a vacuum. यार मैंने It's video not share stated in the question. शेयर ही नहीं किया और हम डिस्कस कर रहे हैं. हाँ तो इसमें लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना. By this data they mean that कि by when now say you are doing this experiment in an atmosphere and when the gas का pressure inside reaches ऐसा बोल सकते हैं when the gas का pressure inside reaches 10 to power 6 then it breaks. Also, but then that 10 की power 5 Pascal of atmosphere is also there, right? I mean they want to say I guess ऐसा भी तो convey कर सकते हैं कि भाई ठीक है इसमें जो है बाहर का 10 to power 5 है ठीक है और अंदर जब 10 to power 6 पहुंचता है then it breaks. So, but when the walls are when the walls are having pressure on them, so it's both the outside ka pressure you have to consider and the inside ka pressure, right? Yes, Yeah. both. उसके बाद outside. complete. So, but like generally in these questions, we aren't supposed to consider the atmosphere का pressure, no? Like yes again हाँ मतलब examiner ने ये account कर लिया है कि हाँ भाई ठीक है बाहर का atmosphere है
उसके बावजूद भी जो है इट्स गोइंग टू ब्रेक एट 10 to power 6. I mean, ठीक है, So, 10 but to it's power not 6. like it's some small value, like 10 की power 5 Pascal. There's a significant amount in this question. It is 10 times. Yes. तो जो है, oh, you are saying कि 10 to power 5 नहीं, neglect आर्यमन neglect नहीं कराना चाह रहा है. एग्जामिनर को देना चाहिए था कि ठीक है, बाहर का प्रेशर ऑलरेडी है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट जो है जब कब ब्रेक होता है. तो हमने ये एक्सपेरिमेंट करके नोट किया कि जब अंदर का प्रेशर इंक्रीज कराते जा रहे हैं 10 to power 5 से, तो 10 to power 5 से हम जब इंक्रीज कराते गए एंड फाइनली हमें डेटा मिला कि 10 to power 6 पे जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, बाहर का प्रेशर एज इट इज इंटैक्ट है. अच्छा, okay, sir. गोपाल, डज दिस मेक सेंस ये वाला, लाइक दिस वे? Yes, sir. ओके, चलो गाइस. यस, सो यस स्टूडेंट्स, सो यस, फिर तो हम इसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन से यू कैन हैंडल दिस वन. हाँ sir, वो easy था, बस only this down. Okay, next one guys. 37. 37. 37. So उसके पहले 22 अगर if you go in order. One में 22. So उसका B part. 22 का ओके. सो इसमें जो गिवन है, इसमें कैलकुलेट द मीन स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, दिस यू हैव डन. हाँ sir, B part. Suppose the molecule strike the wall with this speed making an angle 45 degree with it. ठीक है, तो आपके पास जो है ये वॉल, इसमें मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक करें 45 डिग्री पे. सो 45 डिग्री पे स्ट्राइक करें तो दे विल बाउंस एट 45. सो मोमेंटम चेंज क्या हो जाएगा, mv cos 45 mv cos 45. सो 2 mv cos 45 एक का चेंज होगा. सो एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज इज दिस. सो मोमेंटम चेंज अब जो है दे आर आस्किंग हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स दे स्ट्राइक per square meter. So we will say यहीं से हम यहीं से we will say n molecules, say n molecules per second per meter square they strike. So n molecules. So इसको अगर मान लो इस डेटा को n से मल्टीप्लाई करते हैं तो सब एक मॉलिक्यूल का ये है, सभी मॉलिक्यूल्स का चाहिए होगा. तो ये वाला टर्म जो है टोटल तो लाएगा ही, प्लस यूनिट्स किसका किसका ले आएगा, पर सेकंड or meter square. Momentum change by time will be force by area will be pressure. So pressure का ये pressure पे पहुंच गए, and this is equal to this one. Pressure is 10 to power 5. This one. Gopal, this is correct? Yes, sir. Okay. किसका डाउट, आर्यमन का डाउट था? Yes, आर्यमन, this one okay ना? हाँ yes sir. Okay guys, फिर हाँ next one. चैतन्य. हमें सिर्फ 30 तक दिए थे. 30 तक था. Okay. So we had till 41. 41. Okay. 37. 37th वाला कर रहे हैं. Okay. 37th का. Okay. सर ये पेनफुल क्वेश्चन था सर, बहुत ज्यादा अटका था सर 1 घंटे के लिए. Oh, let's see. इसमें you have a gas vessel of volume V0 contains an ideal okay pressure P0. ठीक है. Gas is continuously pumped out at a volume rate dV by dt. Temperature constant. Temperature अंदर का constant है. और फिर we have okay this statement. So this thing you have to simulate. The pressure of the gas being taken out. भाई जो भी गैस निकाल रहे हो उसका प्रेशर जो है मस्ट बी इक्वल इनसाइड द वेसल. ओके, मतलब जो भी गैस आप डिस्कार्ड करोगे, जिसको भी आप थ्रो करोगे, उसका प्रेशर जो है प्रेशर इनसाइड के इक्वल होगा. ओके, सो कैसे करेंगे? सो मान लो ठीक है, अभी वो पिस्टन वाला करते हैं, है ना. तो लेट्स से वी हैव एट एनी टाइम वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज V0, प्रेशर इज P, सम P. नाउ हम उसको क्या करेंगे, पिस्टन लिया और हम उसको डेल्टा V का एक्सपेंशन देंगे. So we will increase this by delta V. So delta V का increase जब देंगे throughout, फिर steady state आएगा. Steady state में क्या होगा, अगर यहाँ का pressure जो है P1 हो गया, तो इधर का भी P1, 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 everywhere P1. फिर क्या करेंगे, फिर ये dV part, this is the dV part.
then you will discard this dV part. So that will explain this statement that pressure of the gas being taken out equals this is the pressure of the gas being discarded equals the pressure inside the vessel. This is the main vessel. Guys, Neil, this one understood? Yes, sir. So okay, so now between this state and this state, guys, हाँ, इस state और इस state के बीच में देखो क्या क्या conserved है, moles conserved है. इसके और इसके दौरान moles are conserved. So you can write what moles conserved, temperature constant. So आप लिख सकते हो initial pressure P V naught, volume बढ़ा दिया आपने V naught plus dV कर दिया. प्रेशर कम हो जाएगा तो लेकिन P plus dP करते हैं अपने आप dP नेगेटिव आ जाएगा. So ये कर दिया हमने. Let us expand it. So P V naught is equal to क्या जाएगा P V naught plus dP V naught. Okay, ये वाला हो गया plus then P dV plus dP dV. Then this goes away. Okay, then we have what? हाँ, dP dV को भी neglect कर दो, छोटा है. So what? dP V naught plus P dV. Now we want to have time. Time अगर involve करना है time. So okay, dV by dt is R. dV को R dt लिख देते हैं. So dP V naught plus P dV को R dt. Now we can take the variable separable. So minus dP V naught is equal to R P dt. So minus dP by P और ये वाला जो है R by V naught dt. Now you can integrate here. R by V naught तो constant है तो ठीक है इसको बाहर निकाल लो. When time is 0, the pressure is P naught. At any time t, say the pressure is P. So this is minus of ln of P by P naught. और यहाँ पे you'll get R by V naught T. फिर इसके बाद तो सॉल्यूशन जो है E वाले फॉर्म में आ जाएगा e to power minus. Yes, करेक्ट गाइस ये वाला हाँ. yes, sir. Then इसके बाद तो फिर you can handle this one. Yes, students. Next one. So 40th. 40. 40. Yes, Nehal, how did you do this one? 40 का. सर हम लोग को 30 तक ही था. Which one? Which one? 30? सर KTG में 30 तक ही दिया था. Oh, 30 तक दिया था. ठीक है. इन बच्चों का थोड़ा सा ज्यादा था. ठीक है, इनका कर देते हैं एक बार. फिर we'll go move out. एक दो क्वेश्चन ही है वंश. हाँ, 1 minute. Yes kids. कौन सा था? 40. इसके बाद एक्सपेंशन के भी थोड़े डाउट्स लोगे क्या? Yes, we will go there. एक मिनट. हाँ, 40th का किसने किया था? नेहल या गोपाल किसी ने किया था? हाँ, yes. मुझे भी डाउट है सर इसमें. So, Okay. in this you will take the free body diagram at 600 Kelvin. So the friction will be force, friction will be pressure into area. One minute. See, initially this 300 है and pressure is 1 atmosphere. So you are saying 600 Kelvin पे काम करना है because 600 Kelvin में this cork is going to pop out. So 600 Kelvin में at this it just begins to pop out. So Neil, what will be the pressure at 600 Kelvin? Wait. 2 atm. Okay. So now you want to draw the free body diagram. So ठीक है, 2 P naught into area. इधर से P naught into area. Friction किधर आएगा? It is going to pop out. So friction is side. So kinetic maximum friction जो भी है. So you will say 2 P naught A equals P naught A plus friction. So इससे जो है this becomes P naught A. Okay. So this one P naught area. Yes, guys, ये ला कितना हो जाएगा? P naught area. Area is pi r square. Somewhere 1 minute, guys.
यस गाइस, हाँ फिर फ्रिक्शन की वैल्यू तो ये आ गई। यस, फ्रिक्शन को यस सर बट इक्विलिब्रियम में थोड़ी ना है, बाहर निकल रहा है ना, तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन हम तो लेकिन लेकिन इट इज ये जस्ट यहाँ पे बाहर आ रहा है, मतलब फ्रिक्शन का लॉक वहां पे जस्ट फेल हुआ अक्षर। अच्छा जस्ट फेल हुआ, यस सर। ठीक है, तो अब जो है फिर यस, फ्रिक्शन को व्हाट यू विल राइट, म्यू इनटू एन, राइट ना। सो इससे n की वैल्यू कैन ऑब्टेन, and n की वैल्यू is p naught pi r square divide by mu. Yes guys, फिर इसके बाद क्या करना है? This you Divide want by- to, yes, so this normal reaction divide this, ये normal reaction पूरा इसमें spread है, तो divide by L. L is its circumference 2 pi r, so this whole thing divide by 2 pi r, p naught pi r square by mu divide by 2 pi r. So P naught R by 2 mu. Is correct, this one? No, actually, I was confused because they've given the length as 20 centimeter, but that's not used anymore. हाँ, उस डेटा का यस नेहल, हाँ उसका यूज नहीं हो रहा ना, हाँ करेक्ट करेक्ट। ओके गाइस, फिर जो है नेक्स्ट वन गाइस, हाँ सर लेकिन हम लोग को dn by dl फाइंड करना है। ओ दिस इज द होल, वो पूरा स्प्रेड अप है, नॉर्मल रिएक्शन पूरे उसके पेरिफेरी में, कॉर्क के पेरिफेरी में। अच्छा मतलब आपने पूरा टोटल ही फाइंड कर दिया, टोटल और वो सेम ही होगा। यस टोटल, फिर उसको लेंथ से डिवाइड कर लिया। यस सर। गोपाल, दिस वन करेक्ट ना? Yes, sir. ओके गाइस, फिर नेक्स्ट वन कौन सा था? This one you have done, okay. So चलो ठीक है, फिर सर मुझे 30th में डाउट था। which one? 30 30. Wait, so in this question, while we're heating it, we're assuming that volume remains constant, right? Yes, because the cork has not popped out, it is about to pop out. Yes. So the volume is constant, yes. ओ 30th में डाउट था, 30th में जो है फ्लूइड का वो नहीं कराया क्या तुम लोग, तुम्हारे बैच में गाइस मैंने फ्लूइड का? No, in flagship you have. अरे लोग लगा ले ये तो क्लास का क्वेश्चन था ना? यस सो अक्षत, मैंने फ्लूइड का तुम्हारे बैच में नहीं कराया ना? नहीं सर। हाँ सर, नहीं किया। ठीक है गाइस, फिर 30th वाला रन देते हैं। I will discuss tomorrow this one concept tomorrow, and then we can proceed from here. So in our class, actually, that Zenit 2 ka kid who was there, for whom you had repeated the entire of KTZ, he has left now. He has gone to his own Zenit 2 NDPJC2 wala batch. So Okay. then you can start with laws of thermodynamics, I think, in next class. Oh, okay. So I can start with laws of thermodynamics. Yes, I will. Tomorrow I will start with laws of thermodynamics from tomorrow. Yes. So Yes. also actually in flagship in thermal expansion, Sir had left questions on buoyancy also. He said that a little later. Oh, buoyancy ka. Okay, we can discuss that. So can you please discuss Okay, no problem. We'll discuss now. Okay, guys. चलो एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं guys buoyancy का. हाँ. So guys, इसमें जो है this ये वाला फिर से तो होगा ही आपके क्लास में, लेकिन एक बार कर लेते हैं चलो। हाँ. So buoyant force. Buoyant force is guys जो है, this is the force exerted by surrounding fluid. Surrounding fluid on body immersed in it. So on body immersed in it. So by net force by surrounding fluid on body immersed in it.
अब guys, as per Archimedes principle, so Archimedes principle कहता है कि जो है buoyant force, buoyant force is equal to weight of fluid displaced by object when it is immersed in it. When it is immersed in it. Immersed in it. मतलब जो है what does that mean? Buoyant force is weight of the fluid displaced by object when it is immersed in it. मतलब इसका meaning क्या है guys? वो देखते हैं पहले. And what does it? जैसे मान लो इसे you have this container. वही container है और ये मान लो पूरा भरा हुआ है liquid से. So ये container and this is completely filled up with this liquid. अब मान लो जो है आप एक ये सिलेंडर लेके गए. So now you have this object और इस ऑब्जेक्ट को जो है you are यहाँ पे immerse कर रहे हो. So ठीक है, इसको immerse करोगे. guys ये पूरा भरा हुआ था. So ये पूरा भरा हुआ था और उसको आपने immerse किया. So see like this one. So क्या होगा, लिक्विड बाहर आ जाएगा भाई. यहाँ पर पूरा ये तो पूरा फिल था, आपने इसमें जाके इसको इमर्स कर दिया तो ये लिक्विड जो बाहर आएगा. सो लिक्विड बाहर आएगा दिस. अब यहाँ पर क्या था, जो ये वाला पोर्शन गाइस, बेसिकली ये वाला पोर्शन, दिस लिक्विड, इतना लिक्विड बाहर आने वाला है, इतना बाहर आएगा. से दिस इज H. इसका density is rho s solid and इसका radius is r. Density of the liquid is rho l. So guys, can you tell me with the help of this statement what does ये वाला जो value है ना guys, weight of the fluid displaced, weight of the fluid displaced. So buoyant force की value बताओ इस data से as per the Archimedes principle कितना आएगा guys? Buoyant force की value. So what are the dimensions of this body? Okay, dimensions are the height is h and the radius is r. So pi r square h into rho into g. Okay, so weight of the fluid displaced is mass of the fluid displaced into gravity into g. Now rho you didn't say Gopal. Rho किसका? So rho liquid का. Liquid का या solid का? So liquid का. Okay. So rho of the fluid into जितना displaced हुआ है ना भाई, mass of the fluid displaced. ये जो liquid बाहर आया इसका mass में इसका density लेंगे, इसी का volume लेंगे. इसका volume क्या होगा, जितना object पानी में डूबा हुआ है उतना ही वो पानी को displace कर देगा, उतना पानी को बाहर फेंक देगा. So pi r square, okay, pi radius is r, capital R square h into g. Guys, is this correct? Yes, sir. Okay. So can you prove it? Prove. Yes. हाँ. Neil, can you prove it? Sir, experimentally तो कर ही सकता है prove. No, I have Newton's law. अब तो Newton's law हमने पढ़ रखा है. Newton's law से आगे. So because then, so you can like use the weight of the body downwards. So but then where would you make the FBD? Like at which point? No. 1 minute. पहले उसके पहले मुझे बताओ guys, what is buoyant force? So what force is... exerted by the liquid displaced on the body. No. Oh, it's a net force. Net force बोले तो vector sum of all the forces by the fluid on the body, right? चलो ठीक है. तो बताओ इधर से लिक्विड इसको ढकेल रहा होगा, राइट? लिक्विड का फोर्स इधर भी आएगा, इधर से भी आएगा. इनका नेट फोर्स कितना बनेगा? 0. ठीक है भाई, नेट फोर्स 0 आ गया. अब इधर से बिकॉज सेम लेवल पे है तो भाई ठीक है, बराबर हो गया. इधर से भी लिक्विड ढकेलेगा, इधर से भी लिक्विड ढकेलेगा. क्या विल दे कैंसिल आउट? No, sir. No, नीचे वाला will be more Yeah, dominant. it'll be more. Okay, नीचे वाला ज्यादा होगा. So नीचे वाला is P2 into area, ऊपर वाला is P1 into area. Yes, so P2 greater than P1. Okay, तो P2,
हाँ P2A minus P1A ना guys, is this correct? P2A minus P1A. Yes, sir. अब P2 minus P1 into एरिया इसका कितना हो जाएगा भाई? एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. P2 minus P1 कहाँ से आएगा? So using the density or height relationship. फ्लूइड कंसेप्ट. हाँ Yes. yes, हमने सीखा था. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? Rho इसी के GH. पैरेलल में यहाँ पे एक और पॉइंट मार्क करेंगे, इसी भी के पैरेलल में एक और पॉइंट मार्क करेंगे और फ्लूइड्स में वेरिएशन देख लेंगे. फ्लूइड्स का वेरिएशन क्या हो जाएगा? P2 is P1 plus rho GH. रो किसका लेंगे भाई? लिक्विड में प्रेशर वेरिएशन देख रहे हो, रो एल जी एच. सो दिस विल बी रो एल जी एच और ये क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर. तो गाइस ये क्या बन गया? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी. इज दिस करेक्ट गाइस? सो दिस इज द नेट फोर्स गाइस, है ना? ओके. सो इसको रहने देते हैं. सो यस नाउ हाँ, ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई बैंड फोर्स होता है ये वाला. अब इसका एप्लीकेशंस कैसे आएगा थर्मल एक्सपेंशन में? सो एप्लीकेशन में जो है, जैसे मान लो से यू हैव ये लिक्विड में जो है ये बॉडी पड़ा हुआ है, कोई आर्बिट्री शेप का ये बॉडी, और इसमें जो है बैंड फोर्स देख रहे हैं ना. सो बैंड फोर्स इनिशियल और बैंड फोर्स एट टेम्परेचर T0 plus delta T. So say बैंड फोर्स एट some T0. So बैंड फोर्स जो है T0 पर, ओके गाइस, एट बैंड फोर्स एट T0 में बैंड फोर्स क्या आ जाएगा? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. फ्लूइड इज अ लिक्विड, ठीक है यहाँ पर लिक्विड. डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एट टेम्परेचर T0 into volume किसका गाइस? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ना. Yes sir. वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनटू जी. और फिर T0 प्लस डेल्टा टी पे, T0 प्लस डेल्टा टी पे बाइंड फोर्स फाइनल क्या होगा? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. बिकॉज भाई टेम्परेचर बढ़ाया हो तो लिक्विड का भी एक्सपेंशन हुआ है और सॉलिड का भी एक्सपेंशन हो गया है. गाइस इज दिस करेक्ट दिस वन? अब इसको डिवाइड कर देते हैं. सो वी वांट टू कंपेयर कि क्या चल रहा है बाइंड फोर्सेस में. सो रिलेशन क्या है? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर तो फाइनल बाइंड फोर्स डिवाइड बाय इनिशियल बाइंड फोर्स. दिस इज द इनिशियल वन. हाँ गाइस, ये इसका रेशियो गाइस ये आपने पढ़ा है. फाइनल डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय फाइनल डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? इनिशियल डेंसिटी डिवाइड बाय 1 प्लस गामा ऑफ द लिक्विड डेल्टा टी. सो ये बन जाएगा 1/1 प्लस गामा ऑफ द लिक्विड डेल्टा टी. फिर ये सॉलिड वाला भी आपने पढ़ा है, यहाँ पे तो वॉल्यूम बढ़ता है तो इसका रेशियो क्या होगा? 1 प्लस गामा ऑफ द सॉलिड डेल्टा टी. और इसको उड़ा दो यहाँ से, तो दैट मीन्स ये रिलेशन आ गया 1 प्लस गामा एस डेल्टा टी डिवाइड बाय 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी. सो गाइस अब ये बताओ, इसमें जो है लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड, भाई सॉलिड्स का गामा 10 टू पावर -5 या -6 के ऑर्डर का होता है, लिक्विड का 10 टू पावर -3 या -4 के ऑर्डर का होता है. सो गाइस क्या हुआ? फाइनल बाइंड फोर्स बिकेम भाई डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया, लेस. सो फाइनल बाइंड फोर्स इज लेस. सो दैट मींस ये डिक्रीज कर गया. नाउ ये दिस सॉलिड है, सो फाइनल बाइंड फोर्स कम हो गया गाइस. हाँ, सो सी final bind force has decreased. Final bind force decrease हो गया. Now suppose ये आयरन ऑब्जेक्ट का, आयरन का ऑब्जेक्ट को यहाँ पे तो हम ऐसे छोड़ नहीं सकते, छोड़ेंगे तो क्या होगा? नीचे आ जाएगा पानी में. So we have just discussed कि final bind force कम हो जाता है with increase in temperature. With increase in temperature. फिर उसके बाद टेंशन. So guys टेंशन का क्या होगा? टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइनल और टेंशन इन द स्ट्रिंग इनिशियल में कौन सा होगा? कैसे लिखेंगे So इसको? tension in the string final will be greater. Final will be greater because It has to compensate for the loss in buoyancy. correct. Because Newton's law से equilibrium में क्या इक्वेशन आएगा? Equilibrium will say that कि bind force plus tension बराबर mg. भाई ये तो कांस्टेंट है.
अगर ये वाला जितना डिक्रीज हुआ है तो उसको उतने से कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। guys, is this correct? This one correct ना guys, ये वाला? Okay. Yes guys, हाँ स्नेहिल you had okay, और किसका डाउट था? दूसरे चैप्टर्स का somebody was saying, स्नेहिल था कि किसने बोला था? सर एक जनरल डाउट था. हाँ Sir, we have a solid cylinder. In it there's some water. Okay. Now it is heated. They've given the volumetric expansion coefficient of water, and they've given and क्या? हाँ and they've given the linear coefficient of the cylinder, which is made of steel. So Okay. in this they neglected the area ka expansion, sir, and they only considered the water ka expansion. So why did they neglect the area ka expansion in this? one minute. So is it जैसे 24 some even add it up? ओ इसमें नेग्लेक्ट हो रहा था, ठीक है, तो एक मिनट देख लेते हैं, मतलब उसमें हाइट वगैरह निकालना था क्या यार? Yes, sir. Final height at which, like the height change when it is heated. ओके ठीक है, एक मिनट जाओ, तो ऐसा कर लेते हैं ना, सपोज जो है कैसे निकालेंगे हाइट, है ना? तो जैसे गाइस जो है लेट्स से हमें व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज एक सिलेंडर में कुछ लिक्विड भरा हुआ है, एंड लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। लिक्विड भरा हुआ है और इसमें ये हाइट है उसका मान लो h0, और इसका कुछ एरिया है ना, इसका कुछ एरिया है, और फिर जो है आप इसको कैसे डील करेंगे, है ना? तो आई वांट टू डील दिस वे गाइस कि भाई पहले सिलेंडर को निकालो और सिलेंडर का भी एक्सपेंशन करा दो यार, सिलेंडर का एक्सपेंशन। हाउ डू आई फाइंड हाइट? हाइट इज व्हाट? वॉल्यूम बाय एरिया गाइस, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंटेनर गाइस, करेक्ट ना? ये Yes, वाला sir. हाइट तो मैं से निकालूंगा, चलो तो ये मैंने क्या किया, इसको निकाल लिया और इसको भी बाहर निकाला, इसका भी एक्सपेंशन करा लिया, और ये इसका फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? इनिशियल टाइम्स 1 प्लस गामा ऑफ द लिक्विड डेल्टा टी, है ना? और इसका एरिया बढ़ जाएगा भाई, तो इसका एरिया भी जो है बढ़ गया, फैल गया, सो नाउ इट हैज इंक्रीज्ड, सो ये भी बढ़ गया, एरिया जो है इंक्रीज हो गया। Now what I will do, I will pour this liquid inside. So I will pour this liquid inside. तो height final कैसे निकालूंगा? V0 1 plus gamma L delta T divide by area बढ़ा लूंगा भाई, एरिया नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, एरिया तो लेना पड़ेगा मुझे। 1 plus 2 times alpha of the जो container into delta T. Is this correct guys? ये वाला? Yes, sir. Huh. हाँ, no, so area लेना पड़ेगा ना, because volume of the liquid final, height is volume of the liquid final divided by area of the container final. This is उससे ही हमें height उस instant का decide होगा। हाँ सर, सेम मेथड किया सर, बट उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया एरिया का चेंज. No. Yes, the answer doesn't match. हाँ यस Okay. सर. नहीं, हमारे पास एक बुकलेट में था या कहीं पे वो भी था ना इस टाइप का क्वेश्चन, रिमेम्बर? सर HCV का ये 23rd सम है. ओके, नेग्लेक्ट किया है क्या? हाँ सर, नहीं, दैट्स व्हाट माय इस- डाउट वाज. लेकिन एक बुकलेट में ऐसा क्वेश्चन भी था गाइस, रिमेम्बर कि एक ऐसा आर्बिट्री शेप का ये फैंसी बॉटल है, ये ऐसा फैंसी बॉटल, और इसमें एक जो है लिक्विड पूरा भरा हुआ है। फिर क्या किया, सी ये ऐसा बॉटल सी, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर ये एक पाइप जैसा यहाँ पे रखा और ये पूरा क्लोज कर लिया। सी सम बॉटल्स आते हैं ना गाइस ऐसे, ड्रिंक्स के बॉटल, ऐसे कर लिया। हाँ, अब जो है क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, सो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड को क्या हो जाना चाहिए था, बाहर गिर जाना चाहिए था। तो लिक्विड क्या हो रहा था, लिक्विड बाहर नहीं गिर रहा है, इनफैक्ट लिक्विड क्या हो रहा है, इसमें चढ़ जा रहा है, बिकॉज इट कैन नॉट फ्लो आउट, यहाँ पे पूरा मटेरियल है, तो लिक्विड यहाँ पे चढ़ गया। सो ये हाइट निकालना है। रिमेम्बर इस टाइप के क्वेश्चंस वन बुकलेट में था शायद। सो हाउ डिड यू कैलकुलेट द हाइट? फर्स्ट यू कैलकुलेट द ओवरफ्लो। गाइस ओवरफ्लो कैसे निकाला था? फाइनल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड माइनस फाइनल वॉल्यूम ऑफ द नीचे वाला कंटेनर, ये वाला। तो इतना ओवरफ्लो आ गया। फिर हाइट कैसे निकाला? हाइट इज इक्वल टू द ओवरफ्लो वॉल्यूम अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट स्मॉल ट्यूब. यस, तो इस ट्यूब का जो भी कैपिलरी ट्यूब है, या तो एरिया फाइनल ऑफ द ट्यूब। तो गाइस ये क्या, तो ओवरफ्लो वॉल्यूम V फाइनल लिक्विड माइनस V फाइनल कंटेनर डिवाइड बाय, तो इसको ऐसे लिखा था ना 1 + 2 अल्फा ऑफ द ट्यूब
डेल्टा टी, इसको लेना पड़ेगा गाइस। हाँ ओके गाइस, फिर नेक्स्ट बताओ डाउट। सर नहीं सर, समझ नहीं आया, सो देन 23rd सब में क्यों इग्नोर किया? सो आई ट्राइड यूजिंग बोथ द मेथड्स, और No, ऑनलाइन no. भी they neglected it for some reason. They said area is neglected. Oh, you cannot. You should not neglect the area. इसमें तो 23rd में they have. हाँ सर, 23rd Okay. heat and temperature sir, not kinetic theory of gas. Oh, sorry. Yes, you should not neglect the temperature. इसको तो लेना ही चाहिए. Okay, so यहाँ पर हमें निकालना है. Yes, so volume is 500 centimeter cube. Initial area is इतना, तो initial height जो आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा. हाँ yes sir, yes. फिर जो है फाइंड द राइज इन द वाटर लेवल, राइज निकालना है तो हम क्या करेंगे, राइज निकालेंगे तो पहले फाइनल हाइट तो निकाल लेते हैं भाई। फाइनल हाइट कैसे निकालेंगे, फाइनल वॉल्यूम कितना है 500 टाइम्स 1 plus gamma delta T. गामा ऑफ द लिक्विड डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एरिया 125 टाइम्स 1 प्लस जो है उसके लिए अल्फा 2 दिया है, alpha. 2 अल्फा ऑफ द कंटेनर डेल्टा टी, तो ये तो हो जाएगा 4 टाइम्स। ओके, सो इसको कैसे कर सकते हैं, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से 1 प्लस गामा एल माइनस 2 अल्फा सी डेल्टा टी, ये ऐसा आ जाएगा। इज दिस करेक्ट ना इसी वाला? सर ये अप्रोक्सीमेशन कैसे किया? ओ यहाँ से कैलकुलेशन ऐसे कैसे आया, यू आर आस्किंग राइट? नहीं सर, वो अप्रोक्सीमेशन समझ नहीं आया। ओ अप्रोक्सीमेशन कैसे आया, ओके सो ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में ना सी You take 1 plus 2 alpha in numerator. हाँ करेक्ट, सो इसको देखो 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी, इसको ऊपर चढ़ा दो, इसको ऊपर चढ़ाएंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 2 अल्फा सी डेल्टा टी टू द पावर -1। फिर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा के ना, बाइनोमियल माइनस को नीचे उतारो, then you get as 1 minus 2 alpha c delta t and then you multiply, so multiply अच्छा, करोगे so that one term gets neglected. yes, तो ये 3 टर्म्स बचेंगे And that जिसमें one ये पहला टर्म होगा, ये वाला होगा, और ये वाला क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 गामा एल माइनस 2 अल्फा सी डेल्टा टी। so you want to find the change and change is defined as final minus जो आ गया इनिशियल था ना, right? So वही निकालना है ना, अदेसी they are asking us to find the rise change hf minus 4, so ये फाइनल आंसर हो जाएगा ना यार। हाँ yes sir. गामा एल माइनस 2, so you cannot neglect, ये लेना पड़ेगा। ओहो, you are saying कि इससे लोगों ने यही वाला लिया है, इसको नेग्लेक्ट कर दिया। हाँ yes sir, वो 2 alpha c को नेग्लेक्ट करके दे दिया था। no, और ऑनलाइन 2-3 साइड ने यही किया था। no, पूरा आंसर you must report। अच्छा ओके, गॉट इट। This is the final answer, yes। Okay guys, और the next doubt। सर एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन 9। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन 9, ओके वहीं पे था ना, 1 मिनट। सर मेरे को और एक डाउट था सर, लाइक जो आपने प्रूफ दिया था वो पूरा बॉयंसी वगैरह का, उससे हम लोग 30th सम कर सकते हैं ना? ओह 30th सम जो बायंसी का जो प्रूफ किया था उससे क्या? हाँ सर, जो आपने दिया था लाइक P1 इज इक्वल टू वो रो जी एच और हाँ, P2 इज इक्वल टू हाँ। P1, यस वो फिर कर सकते हैं ना 30th वाला? हाँ, फ्लूइड्स का वेरिएशन है ना, P2 is P1 plus rho GH, yes, हाँ वो हाँ, और Boyle's law, yes, correct। So exercise 1 का Snail you are saying 9th one। 1 minute, ठीक है, 9th question। हाँ, ये पीछे कैसे? Ninth one, yes, हाँ। You want to find the loss in weight of a solid, loss in weight of a solid, loss in weight is basically buoyant force, ठीक है भाई, is W naught, T at T it is W, और फिर जो है what you want to find, okay, so that means you want to find the final buoyant force by initial buoyant force, okay, final buoyant force is W, initial वाला W naught, और अभी हमने derive किया buoyant force का
गाइस कितना आया था 1 प्लस गामा एस डेल्टा टी डिवाइड बाय 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी। इसको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कर देते हैं तो वी विल गेट दिस एज 1 प्लस गामा एस माइनस गामा एल डेल्टा टी और डब्ल्यू नॉट को उधर ले जाते हैं। स्नेहिल, इज दिस करेक्ट? यस सर। हाँ सर Okay. तो ये रिलेशन हम डायरेक्टली याद रखें ना? नो 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 नो, मुझे तो याद नहीं है, अभी मैंने किया इसलिए जे अदरवाइज व्हाट डू आई डू? बाइंड फोर्स क्या होता है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, और जो है जी हो जाएगा। जब रेशियो लूंगा तो फाइनल बाइंड फोर्स बाय इनिशियल बाइंड फोर्स, डेंसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन है तो मैंने देखा इनवर्स रिलेशन है तो गामा एल डेल्टा टी, और वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है तो 1 प्लस गामा एस डेल्टा टी, ऐसा कर लिया। ओके सर। हाँ चलो गाइस, फिर नेक्स्ट वन, ये स्टूडेंट्स, हाँ नेक्स्ट वन, थर्ड वाला भी। थर्ड वाला, यस सर नहीं, थर्ड नहीं, सॉरी फोर्थ। फोर्थ वन, ओके सर अपेरेंट एक्सपेंशन में एग्जैक्टली क्या करना है समझा नहीं। फोर्थ वन में यू आर आस्किंग, ओके 1 मिनट, क्या था अपरेंट एक्सपेंशन क्या होता है? ओके, यू हैव अ डाउट इन दैट थ्योरी पार्ट। सो ठीक है, 1 मिनट, तो कैसे करते थे हम इसका थ्योरी में सर ने कैसे पढ़ाया था? सर 1 ये मिनट वाला सी, पार्ट हमको कराया नहीं, अपेरेंट एक्सपेंशन। ओके ठीक है, चलो फिर एक बार जल्दी से अपन डिस्कस कर लेते हैं, कुछ खास नहीं, इजी है। सो इट्स इजी, देखो यहाँ से चालू करते हैं यार कहानी। सो वी हैव दिस वन, एक मिनट, हाँ तो जैसे मान लो स्नेहिल, जैसे ये कंटेनर है, कंटेनर और ये लिक्विड भरा हुआ है और इस पूरा कंप्लीटली फिल्ड अप है। हाँ, इसका 100 सेंटीमीटर क्यूब है वॉल्यूम। तो अब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड ओवरफ्लो होता है, तो वो ओवरफ्लो निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो हम क्या बोलेंगे भाई, इसको कंटेनर को अलग देख लो और लिक्विड को अलग देख लो। तो टेम्परेचर बढ़ाओ भाई, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये भी फैलेगा, मान लो ये हो गया 101 और ये भी फैल गया 100, दोनों 100 थे इनिशियली और ये 100 से 104 हो गया। अब इसको इसमें डाल दो, तो इसको डालेंगे तो ओवरफ्लो कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर क्यूब। 104 माइनस दिस वन इज द ओवरफ्लो। अब जो है दिस इज द ओवरफ्लो हो गया। सो नाउ हाउ डिड यू कैलकुलेट द ओवरफ्लो? ओवरफ्लो के लिए फाइनल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड माइनस फाइनल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड क्या था इनिशियली? V0 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी, और ये वाला क्या था? फाइन V0 1 प्लस गामा ऑफ द कंटेनर डेल्टा टी। सो दोनों को माइनस कर रहे हैं तो V0 कट गया और ये बन गया गामा एल माइनस गामा कंटेनर डेल्टा टी। सो दिस टर्म गामा एल माइनस गामा सी, हाँ द टर्म गामा एल माइनस गामा सी, क्योंकि लिक्विड कंटेनर में ही रहेगा, तो दिस इज कॉल्ड एज गामा अपरेंट। तो लिक्विड बैठेगा कंटेनर में, तो ये क्या हो गया भाई? गामा अपरेंट। ओके, गामा अपरेंट डेल्टा टी, गामा अपरेंट, इसी को ही गामा रिलेटिव बोल देते हैं। सो भाई ठीक है, नया टाइम डिफाइन हो गया, गामा अपरेंट। गामा अपरेंट भाई कौन किसका किसके रिलेटिव? जो है लिक्विड का, लिक्विड कहाँ बैठेगा? कंटेनर में। गामा अपरेंट या गामा रिलेटिव भी बोल देते हैं। ये क्या बी क्यों रख रहा हूँ? दिस इज गामा, गामा gamma of the liquid gamma relate apparent या gamma relative same thing, gamma of the liquid कंटेनर के रेस्पेक्ट में, ऑब्वियसली लिक्विड कहाँ रहेगा? कंटेनर में रहेगा, इसलिए कंटेनर के रेस्पेक्ट से ऐसा डिफाइन हो रहा है। नाउ सर स्क्रीन शेयर। सो विल गो हियर दिस वन, सो ओ यू वांटेड टू राइट दैट वन क्या? नहीं नहीं। ओके ओके, अब जो है यहाँ पर, सो यहाँ पर जो है कोएफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड, अपरेंट मतलब रिलेटिव है ना गाइस, तो किसका किसके रिलेटिव है? लिक्विड का कॉपर वेसल के रेस्पेक्ट में। ओके, सो गामा लिक्विड माइनस गामा कॉपर, गामा ऑफ द कॉपर वेसल बराबर सी, है ना? अब वही लिक्विड का सिल्वर वेसल में,
ऑब्वियसली लिक्विड वेसल में बैठेगा तो लिक्विड माइनस सिल्वर वेसल इज एस। हाँ, अब पूछा है द कोएफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द कॉपर इज गामा सी। हाँ, दिया हुआ है। व्हाट इज द लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट निकालना है, मतलब ऑफ द सिल्वर। तो यहाँ से क्या किया जाए, इसमें माइनस कर देते हैं। माइनस करो, गामा एल उड़ा दो और ना गामा एस फाइंड करो पहले। गामा एस फाइंड Yes, करने के yes. बाद अल्फा एस आ जाएगा गामा एस बाई 3 करके। हाँ सर। हाँ हाँ, यस गाइस। हाँ, सर यस अक्षत। हाँ सर इसमें गामा ऐसे फाइंड करना है ना हम लोग को, नहीं लीनियर एक्सपेंशन। नहीं, हाँ लीनियर फाइंड करना है, पहले गामा एस निकालो फिर उससे अल्फा एस निकाल लो। यस सर। सर आप रिकॉर्डिंग भेज दोगे ना? ये वाला, यस आई विल सेंड। यस हाँ हाँ। सर और मेरे को और एक डाउट था, मेरे को फॉर्मूला कंफर्म करने थे, लाइक 2 एक्स्ट्रा फॉर्मूला VRMS के। हाँ हाँ, एक सेकंड सर। हाँ सर, एक फॉर्मूला होगा 3p बाय रो ना, लाइक 3p बाय डेंसिटी ना, रूट Yes, ऑफ 3p बाय डेंसिटी। यस VRMS का एक VRMS का फॉर्मूला इज हाँ स्क्वायर सर। रूट ऑफ और एक 3p फॉर्मूला सर, वन मोर फॉर्मूला विल बी 3 इंटू अपना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू T अपॉन M ना। 3RT by molar mass। सर वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू अपना 3 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू T Oh, अपॉन M। एक मिनट। सो यू हैव टू वो एक राइट R मॉलिक्यूल को क्या भी है। लिखेंगे, N एवोगैड्रो यस नंबर सर, इनटू R को K हम लोग हाँ T यस सर डिवाइड ये बाय लेंगे। और मोलर। हाँ, मोलर मास को क्या लिखोगे, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इनटू यस सर एवोगैड्रो इंटू नंबर। Na। हाँ फिर Na कैंसिल्ड। यस, ये सो भी कर सकते हमारा हैं ना फिर। 3kT by मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। यस सर। सर जो कैपिटल M है वो kg में आएगा ना? कैपिटल M इज द मोलर मास। जैसे हाइड्रोजन के लिए जो है, इफ इट इज हाइड्रोजन सो मोलर मास इज 2 into 10 to power minus 3 kg, ऐसा यूनिट्स में यस सर kg में आएगा। ओके सर। हाँ, और so सर ये M है, ये स्मॉल m है, उसमें पूरा एवोगाड्रो नंबर कंसिस्ट करेंगे कि नहीं? small m is the mass of each molecule। तो mass of each molecule कैसे निकालोगे, you have the हाँ मोलर मास, फिर उसको एवोगाड्रो नंबर ऑफ से डिवाइड करोगे तब जाके वो आएगा। so हाँ this सर। becomes this becomes very lengthy expression, so this is more convenient expression। ओके सर, ओके सर। हाँ, yes guys। और चैतन्य, any doubt? अक्षत? नहीं सर। ओके। होमवर्क पूरा अभी तक अक्षत कहाँ तक हुआ होमवर्क? सर आपने जितना दिया था वो HCV 1 to 30 और वो ICV 3 वो तो कर लिया अभी, आज बाकी और आगे अगर हुआ। ओके गाइस, हाँ जल्दी से इसी वीकेंड कंप्लीट करना है, क्योंकि नेक्स्ट ऑल्दो इट्स नेक्स्ट वीक, सो आप पहले से इसको कंप्लीट करके रखते हैं। सर 14th वाला एक बार बताओ ना। 14th वन। चैतन्य, उसका भी होमवर्क देते हैं क्या फिर, DC पांडे से भी? सर पहले ओके बहुत सर। है ना चैतन्य? नो सर अभी सर आपने सर बहुत सारा दिया है ना, एक्सपेंशन कैलोरीमीटर, तो उसका थोड़ा ये सब तो टाइम। ये तो कर लिए बोल रहे हैं, अभी इस वीक में हो जाएगा सर तो नहीं अगले सर, क्या आपने करोगे? तीन चैप्टर के होमवर्क दिए हैं, HNT का दिया है, KTG का दिया और कैलोरीमेट्रिक का भी दिया। ओ नो, ओके। फिर भी वी हैव दैट बुक, तो उसका यूटिलाइजेशन तो नहीं हो रहा है, फिर भी करना चाहिए अपन को कुछ। चलो ठीक है। यस, व्हिच वन, 14th वन राइट? यस ओके। इसमें क्या क्या गिवन है? I is the moment of inertia of a solid body। ओके। सॉलिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई सा भी हो, एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट आएगा, मास आएगा, और जो भी लीनियर डायमेंशन का एक स्क्वायर आएगा, मतलब L स्क्वायर R स्क्वायर ऐसा कुछ आएगा। ओके, नाउ व्हाट यू फाइंड? I is the moment of inertia, the corresponding change in I, DI निकालना है। ओके, DI ओके। हाँ, इसको लॉग वाले से करते हैं ना, ये कांस्टेंट हो गया यार, इसको हटाओ। तो ये DI by I is equal to 2DL by L। सर di/dt ना। Oh, you want to do that way? I was doing using error वाला जो करते थे ना, DI by I is equal to 2 delta सर L by L। ये समझा है मुझे, बट ये ओ, किससे कैसे करूंगा? करते थे देखो,
याद है एरर वाले में क्वांटिटी लेते थे q सम x टू पावर a y टू पावर b z टू हाँ पावर सर, c, हाँ सर, फिर log लेते थे a ln x प्लस b ln y प्लस c ln z, फिर डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आ जाएगा dq by q a dx by x b dy by y और c dz by z। हाँ सर। सर इससे होगा क्या di/dt से? हाँ हाँ उससे भी हो जाएगा, एक मिनट सर एक बार अभी उससे देखो कर दो। di by dt बराबर के m टू dl by dt है ना। अब ये dt उड़ा देते हैं, चलो हटाओ। अब I बराबर क्या है के m l स्क्वायर, अब इसको डिवाइड कर देते हैं। सो ये कितना हो जाएगा, अरे ये क्या किया, l स्क्वायर का 2l dl by dt, अब डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे तो di by I बराबर 2l km गया, एक l चला जाएगा और 2 dl by l आ जाएगा, और dl by l को हम लिख लेंगे अल्फा डेल्टा t। करेक्ट ये वाला यस सर। इज di by I। अब निकाल लोगे यहाँ से। हाँ सर। हाँ हाँ ओके गाइस। स्नेहिल और कौन सी डाउट है? ओ सॉरी कॉपीड ना दिस वन, क्या कर दिया? यस सर। हाँ चलो ठीक है फिर गाइस, नेक्स्ट और कौन सा डाउट है स्नेहिल, कहाँ तक हो गया तुम्हारा होमवर्क? सर मेरा HCV हो गया सारा, कैलोरीमेट्री का, ये हाँ एक्सपेंशन का, और कैलोरीमेट्री भी थोड़ा हुआ, और बुकलेट का हुआ, ये IC 1 2 और एक्सरसाइज 1। ओके 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 हाँ हाँ चलो ठीक है गाइस, फिर और कंटिन्यू फिर जो है फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं गाइस। चैतन्य एनी Okay, डाउट्स sir. यू हैव? यश नहीं ओके ओके सर। चैतन्य होमवर्क ठीक चल रहा है ना? हाँ सर, HNT का HCV का हो गया, फिर IC 1 भी किया, और बाकी का KTG में 1 to 30 HCV का। ओके ठीक है, मैं इस कल जो है करा के फ्लूइड्स का ना, तो इस वीक तक मुझे संडे तक पूरा कंप्लीट चाहिए, पूरा होमवर्क हो जाएगा ना? हमें टेस्ट के लिए पूरा फुल हाँ प्रिपरेशन सर। चाहिए ना। हाँ संडे तक हो जाना चाहिए ताकि फिर नेक्स्ट वीक हम थोड़ा सा आराम से रिलैक्स रह सके, है ना। उसमें हाँ प्रेशर हाँ नहीं चाहिए सर। अपन को आगे। हाँ ओके गाइस देन बाय ऑल। हाँ बाय सर सर। DC पांडे Bye, का sir. नहीं Thank you. करना है ना फिर? इसी पांडे का भी shall we sit together tomorrow after the class and try to figure out कि कुछ क्वेश्चंस हम मार्क करके इसको दे सकते हैं क्या बच्चों को? ओके सर, चलेगा। You have the PDF in your phone ना? हाँ सर। चलेगा तो उसको I will look from those and let's mark few questions at least, जो नए वाले क्वेश्चंस हैं at least कुछ डिफरेंट रहेंगे तो। हाँ सर, ठीक है। ओके 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 गाइस, हाँ बाय ऑल। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय ऑल।